Good morning students, this is Anupama Labhe and we started our new topic, that is Consumer Protection Act. Under that we are discussing today the Central Council, that is the Central Consumer Protection Council. What is the objective of the Central Consumer Protection Council? The objectives are to protect consumer rights. Obviously, the Consumer Protection Act is made for protecting the rights of the consumer. But what is the use of the Central Consumer Protection Act? Central Consumer Protection Act protect the overall interest of all the consumers of a country. Okay, there are different types of council, the state council, the district council, but the cases which are not dealt in by the central councils are dealt in by the Central Consumer Protection Council. Let us see how it is constituted. The constitution of the Central Protection Council is done by the central government by notification. By notification in an official gazette, the central government constitute the Consumer Protection Council, that means Central Consumer Protection Council. The composition of this council is, it shall have 150 members, that means total members of this council should be, or you may say must be, 150. Then the central minister in charge of consumer affairs shall be the chairman. Who can occupy the position of chairman? Only the person, that means who is occupying the position of central minister in charge of consumer affairs. There are many ministries in a cabinet, but the minister who is in charge of the consumer affairs shall be the chairman of the Central Consumer Protection Council. The Minister of State in the Department of Civil Supplies without independent charge shall be vice chairman. Who will be the vice chairman of this council? The Minister of State in the Department of Civil Supplies. The minister who is in charge of civil supplies will be the vice chairman of this council. Then 8 MPs. 8 MPs, 5 from Lok Sabha and 3 from Rajya Sabha will be the member of this council. What is the purpose of appointing only these persons as the chairman, vice chairman, or the members of this council? The central minister, because this is the council which is running or which is handling at the central level, and that's why the minister of central ministry must be the chairman of this council. Okay, then the commissioner of SC and ST, 20 representatives of the central department government concerned with consumer interest. There are so many departments which protect the interest of the consumer, and those departmentals representative, that means at least 20 representatives must be the member of this council. Then at least 20 representatives of the consumer organization. There are consumer organizations to protect the interest of the consumers. Out of those consumer organization, 20 representatives representing the consumers organization must be appointed as the members of the council. Then 15 members capable of representing consumer interest. These persons may be independent person, but what is important, they must be representing consumer interest, means they are working for the protection of the interest of consumers. Then the secretary in the Department of Civil Supplies shall be also the secretary of the Central Council. Then secretary in the Department of Civil Supplies, who is supplying that means the civil supplier, and the secretary of that department will also be the secretary of this council. So this is the composition of the Central Consumer Protection Council.
as I told you that it is important to handle it at central level, and that's why most of the important positions are occupied by the minister who are also in the central government, that is a cabinet ministers. Okay, then let us see how many times the meeting of this council must be taken. At least once in every year. That means the Central Consumer Protection Council must held at least one meeting in every year. The place, time of meeting may be decided by the chairman. The chairman has a right to decide where to conduct his meeting, at what time to conduct his meeting, and on which date to conduct this meeting. All rights are reserved with the chairman of the council. Now, what are the objects? Objects is to protect consumer rights. So what types of rights are protected by this council? First one, the right against marketing of hazardous goods and services. The right against marketing of hazardous goods and services. What do you mean by hazardous goods and services? The goods which may harm the consumers. बराबर है? ऐसे गुड्स जो हार्म कर सकते हैं कंज्यूमर को, ऐसी मार्केटिंग करनी नहीं है. एज ऑल ऑफ यू नो दैट ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर मार्केटेड, दैट मीन्स जिसके एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं, बराबर है, तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, पर्टिकुलर एक्सपर्ट के पास नहीं जाते और उसे पूछते नहीं है कि क्या ये हमने प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना. हम लोग क्यों वो प्रोडक्ट खरीदते हैं? क्योंकि उसकी जो मार्केटिंग हुई है उससे अट्रैक्ट होकर हम लोग वो प्रोडक्ट खरीदते हैं. लेकिन ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो हजार्डस होते हैं और जिसके बारे में प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिलनी है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी है, बहुत ज़रूरी होती है. तो ऐसे गुड्स जो हजार्डस है उनकी अगर राइट अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये जो प्रोटेक्ट करना है कि ऐसे अगर हजार्डस गुड्स है तो उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको देनी जरूरी है, या तो कौन से प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं होगी, इसके लिए भी ये जो these are the objects of the consumer council. Then the right against unfair trade practices. अगर कोई है who is involved in unfair trade practices, the consumer must have the right against him to file a suit. क्या होता है, जैसे कि उसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी क्या है, अनएथिकली उसने अपने गुड्स सोल्ड किए हैं, एक्सपायरी डेट हो गई है, उसने उसका लेबल चेंज किया और आपको सेल कर दिए हैं. जो उसके वेट बताया है वो वेट उसने वो दिया नहीं है, उसे कम दे दिया है, या जो गुड्स बताया है वो गुड्स दिए नहीं है, अल्टरेटेड गुड्स है. तो अगर ऐसे गुड्स वो सोल्ड करता है, सेल करता है, तो कंज्यूमर हु परचेसेस सच ए गुड्स from the seller must have a right to file a suit against that seller. फिर right to get various goods and services at competitive prices. ये भी एक right है कंज्यूमर का, to get the goods at competitive prices. यानी कि जितने हैं हम लोगों ने देखा है कि एक्सेसिव प्रॉफिट चार्ज किया जाता है ट्रेडर्स से, तो ऐसे गुड्स कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लेने का उनका राइट है. जैसे एमआरपी से ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्ट की वैल्यू रखता है और आपको सेल करता है, तो यू कैन हैव अ राइट टू फाइल ए केस अगेंस्ट हिम. एंड वेयर यू कैन फाइल दिस केस? यू कैन फाइल दिस केस इन द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. फिर क्या है, द राइट टू बी हर्ड टू इंश्योर दैट द कंज्यूमर इंटरेस्ट रिसीव्स ड्यू कंसिडरेशन एट डिफरेंट फोरम्स. देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि देयर आर डिफरेंट फोरम्स विच आर वर्किंग एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो अगर ऐसे इसमें समझ लीजिए कि आपकी कोई केस है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली, फिर स्टेट फोरम में उन्होंने भी नहीं ली, तो ऐसे इसमें क्या है, अगर आपको जजमेंट प्रॉपर नहीं मिला है, देन इन सच केसेस द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू रीच द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. तो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है. They protect the interest of the consumers where they have not a chance to be heard at different forums. Then the right to be redressed against unfair trade practices.
रिड्रेस्ड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि अगर ऐसे कोई हुई है उनके साथ में तो उनको ये यहाँ पे यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में बताने का राइट मिलना चाहिए, एंड दैट राइट इज गिवन टू द कंज्यूमर्स अंडर द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, क्यों सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर्म की गई हुई है। ये इसलिए फॉर्म की गई है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट वो केस हैंडल करने के लिए अगर ही डू नॉट हैव दैट राइट और वो फेल हुआ है टू गिव द सेटिस्फैक्ट्री जजमेंट, तो ऐसे इसमें भी ऐसी जो केसेस है दैट इज डील्ड विद बाय द सेंट्रल काउंसिल, दैट मीन्स द सेंट्रल कंज्यूमर काउंसिल प्रोटेक्शन। तो ये मेन पर्पस होता है। और समझ लीजिए कि जैसे मल्टीपल इसमें अगर वो ट्रेडर है वो अपना सेल कर रहा है या उसका वहाँ पे बिजनेस है और उससे पर्टिकुलरली बताया नहीं है कि ये केस कहाँ पे डील होगी, तो ऐसे इसमें भी कंज्यूमर कैन फाइल द केस इन अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। समझ में आया है? तो क्या है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट किसमें देते हैं, ऑफिशियल गैजेट में बताते हैं, और फिर ये फॉर्म यानी इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इस काउंसिल का, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल काउंसिल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंपोजिशन के लिए मैंने बताया है कि एटलीस्ट 150 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन 150 मेंबर्स में से इतने तो भी ये जो स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं, वहाँ से आपको वो लोग लेना जरूरी ही है। जैसे क्या क्या बताया मैंने आपको, द सेंट्रल मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स शैल बी द चेयरमैन। सेंट्रल मिनिस्टर, ठीक है, आप जानते हो स्टेट मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं। स्टेट मिनिस्टर को राइट रहता है वो स्टेट के अफेयर्स को हैंडल करने का, और सेंट्रल मिनिस्टर को राइट रहता है कि पूरे के पूरे इसके वो अपना हैंडल कर सके, ठीक है। तो सेंट्रल मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स ये स्टेट लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, सेंट्रल लेवल पे भी होता है, लेकिन जब हम लोग ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात करते हैं तो उसका चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ कौन होना चाहिए, who is in charge of consumer affairs but who is working in a central ministry। समझ में आया? सेंट्रल मिनिस्टर में जिसे ये इंचार्ज बनाया गया है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट्स और टू हैंडल द अफेयर्स ऑफ द कंज्यूमर विल बी द, या उससे ही बनाना है, किसे बनाना है, उसका चेयरमैन बनाना है, ठीक है। सेकंड फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सप्लाईज विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज शैल बी वाइस चेयरमैन। कौन होगा? जिसको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया है, ठीक है, मिलके भी कोई चार्ज दिया जाता है, और इसके पास कौन सा चार्ज दिया गया है, सिविल सप्लाईज का। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यहाँ पे पहले हमने देखा कौन सा, सेंट्रल मिनिस्टर, सेकंड इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सप्लाईज हु इज रिस्पॉन्सिबल to supply the civil commodities without independent charge shall be vice chairman। उससे क्या बनाया जाता है, vice chairman। then 8 MPs, MPs जो है यानी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, वो कौन से होने चाहिए, 5 फ्रॉम लोकसभा एंड 3 फ्रॉम राज्यसभा। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, या वो हम लोग कहते हैं कि वो मेंबर्स करके ये 150 मेंबर्स में इंक्लूड होना जरूरी होता है। देन कमिश्नर्स ऑफ SC एंड ST, SC एंड ST के जो राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए जो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की है, दैट कमिश्नर शुड बी अ मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। फिर 20 रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग है, ये समझ लीजिए 1, ये 2, ये 8 यानी 10 हो गए, फिर ये 11, ये 20 बराबर है 31, लेकिन ये ऐसे पूरे के पूरे नहीं 31, फिर ये 20 बताया है, 51 हो गए, ये 10, 61, फिर ये 20, 81, फिर ये 15, 96, ये ऐसे बताए हैं, लेकिन ये तो यानी समझ लीजिए कि टोटल 100 हो रहे हैं, तो 50 जो उन्हें बराबर लगते हैं ऐसे एडिशनल 50 मेंबर्स यानी एट द लीस्ट कितने होने चाहिए उनके, 150 मेंबर्स, और ये होना कंपलसरी है।
आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं थे अवेलेबल इसलिए हमने दूसरों को ले लिया है। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है द कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स मस्ट बी फ्रॉम दिस पीपल, ठीक है, तो ये लेना जरूरी है। और फिर ये जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स देखे हुए हैं, ऑब्वियसली द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ओके, बाद में हम लोग देखेंगे कि स्टेट लेवल कमीशन क्या होता है, स्टेट लेवल फोरम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम। ओके, थैंक यू।